गुड मॉर्निंग, हाउ आर यू। आप सभी दोस्तों का इंग्लिश जंक्शन बाय हरिवंश सर पर बहुत बहुत स्वागत है। आशा है आप सब लोग जो पिछली वीडियो में बताए गए टिप्स हैं उसको फॉलो करते होंगे और उसको सीखते होंगे। निश्चित रूप से आप लोग उस कर रहे होंगे। तो सबसे पहले तो मैं आप लोग से कुछ सवाल पूछूंगा और आप लोग को धीरे धीरे करके बताना होगा एक एक करके। तो क्या आप सभी लोग कोई न कोई टॉपिक, कोई न कोई स्पीच, कोई वीडियोस या कोई न्यूज़ सुन रहे हैं? आर यू लिसनिंग टू समवन स्पीकिंग इन इंग्लिश? आर यू रीडिंग a newspaper? Are you reading any magazine? Are you reading any content which is in English? If not, then start reading. Third thing is that if there is no atmosphere of English around your house, around you, in your surroundings, so don't take tension. Always try to create such an atmosphere which is very useful to you and think in English all the time. Start thinking from today. So, dear students, are you thinking? If not, then start thinking. Just think in English all the time. Whatever things you are speaking in Hindi, in your mother tongue, so don't worry, just think in English the same thing. Try to think. If you face any word, if you face any problems, so no problem, you can just overcome that. Gradually you will overcome that. And last thing is that start writing something daily. As I told you in my previous videos, you must listen to someone, you must think something, you must read some English contents, you must talk to somebody who is able to speak in English, you must write something. So these are the tips by which you can just improve yourself daily. But how to start whenever you are going to talk to somebody in the very first time, whenever you are talking to somebody, when you meet him, so how you will start? There are some tips now I'm going to tell you. Just my dear students, you should just follow me. So topic is how to greet someone. Whenever you meet somebody, generally if you meet any unknown person, so simply you say that hello. You will say hello, hi. These things are there. It means to any unknown person. Generally when we receive any call, we say that hello. It means we don't know who is the person talking to me. So in that condition you can say hello and hi. But when you meet somebody face to face, so in the morning from मॉर्निंग, यू कैन से दैट मॉर्निंग मीन्स कुछ लोग की देखिए इसमें है क्या कि कुछ लोग की सुबह होती है 11 बजे, कुछ लोग की सुबह 4 बजे भोर में हो जाती है। तो कैसे डिसाइड करें? तो फ्रॉम यू कैन से गेटिंग अप, फ्रॉम गेटिंग अप टू 12 o'clock in the day. When you talk to somebody, when you meet somebody for very first time, so whenever you get up, after getting up, from getting up to 12 o'clock in the day, मतलब दोपहर में 12 बजे के पहले जैसे आप किसी से मिलते हैं तुरंत बोलते हैं गुड मॉर्निंग। मिलते समय while meeting, while मीटिंग, जब आप किसी से मिलेंगे तुरंत बोलेंगे गुड मॉर्निंग। तो वाइल डिपार्टिंग, वाइल डिपार्टिंग, जब आप उससे विदा लेते हैं, उससे दूर जाते हैं, तो बोलेंगे हैव अ गुड डे, हैव अ गुड डे, या गुड डे, हैव अ नाइस डे। ये सब सारी चीज़ें बोल सकते हैं। अगर आपको शीघ्र मिलना है तो बोल सकते हैं सी यू अगेन, कल मिलना है तो सी यू टुमारो। इस तरह से आप बोले। अगर मान लीजिए अगर आपको आफ्टर 12 o'clock, आफ्टर 12 PM टू 4 PM, अगर आप इस बीच में किसी से मिलते हैं तब क्या बोलेंगे? गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून। ये कब? वाइल मीटिंग, जब आप मिलते हैं, जब भी आप किसी से मिलेंगे तो गुड आफ्टरनून।
और जाते समय वाइल डिपार्टिंग सेम, वाइल डिपार्टिंग द सेम चीज़ आप बोल सकते हैं हैव अ गुड डे। जब आप किसी से विदा लेते हैं 12 बजे से लेकर के 4 बजे के बीच में, तब यही बोल सकते हैं हैव अ गुड डे, हैव अ नाइस डे, गुड डे, इतना ही बोल सकते हैं। सी यू, गुड बाय, बाय बाय, बहुत सारी चीज़ें हैं। लेकिन कब कैसे बोलेंगे? अगर आप 4 PM टू बेड टाइम, बेड टाइम का ये मतलब नहीं कि आप 1 बजे सोएं, 2 बजे सोएं, तब ऐसा नहीं है। बेड टाइम जो जनरली डिसाइडेड होता है 10 बजे, 11 बजे, मीन्स 12 बजे के पहले कभी भी जब आप किसी से मिलें तो बोलें गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। ये भी वाइल मीटिंग है। जब आप डिपार्ट करते हैं तो आप बोलेंगे स्वीट ड्रीम, गुड नाइट। आप कह सकते हैं गुड नाइट, हैव अ नाइस ड्रीम। एट्सेट्रा, ऐसे बहुत सारी चीज़ें बोल सकते हैं। लेकिन अगर किसी अननोन व्यक्ति से, कोई ऐसा व्यक्ति हो जिससे आप मिले हों, तो जैसा कि हमने बताया तो हेलो हाय से शुरू कर सकते हैं। या अगर आपका जान पहचान वाला व्यक्ति है, इफ़ यू नो द पर्सन, यू कैन टॉक टू हिम, गुड मॉर्निंग अंकल, गुड मॉर्निंग आंटी, गुड आफ्टरनून अंकल, गुड आफ्टरनून आंटी, लाइक दिस यू कैन से। बट while डिपार्टिंग, if you are very much formal, you can say goodbye sir, गुड बाय आंटी, गुड बाय अंकल। लेकिन अगर आप किसी इनफॉर्मल वे पे बात करते हैं, अगर इनफॉर्मल है उस कंडीशन में आप कहें, तो आप कहेंगे बाय बाय, बाय बाय, हेलो, हाय, बाय, तुरंत इस तरह से बोल सकते हैं बड़े आराम से। तो ये इनफॉर्मल तरीका है। तो लेकिन जैसे ही आप किसी से मिलते हैं, हाल चाल करते हैं, मिलने के बाद, ये विशिंग के बाद आप हाल चाल करते हैं, तो तुरंत पूछते हैं हाउ आर यू, व्हाट्सअप, कहते हैं ना व्हाट्सअप, क्या चल रहा है, क्या हाल चाल है। तो बोलते हैं, अगर कोई से पूछते हैं हाउ आर यू, तो क्या जवाब देता है आदमी? फाइन, थैंक यू, आई एम फाइन। अगर आप फिर उसके बाद बोलते हैं तो आई एम टू, मी टू, सेम हियर, आई एम ऑल्सो फाइन। तो इस तरह से हालचाल की शुरुआत आप कर सकते हैं। ये तो हुई शुरुआत की बातें। लेकिन अगर आप शुरुआत हो गई और कुछ चीज़ें आपको बोलनी हो, कुछ ऐसी चीज़ें कि अगर आपको लग रहा है कि ये डेली यूज़ में आती हैं और हमें बोलना पड़ता है, तो आप किस तरह से बोलेंगे, किस तरह से आप जो है कुछ ऐसे डेली यूज वाले सेंटेंसेस अपनी लाइफ में बोलेंगे। जैसे अगर आप किसी को कोई चीज़ ऑफ़र करने जा रहे हैं, जैसे कोई आपके घर आया व्यक्ति है, अगर आप कोई मेहमान आया है तो उसको अगर कुछ ऑफ़र करते हैं, जैसे कोई चीज़ ऑफ़र करते हैं, पोलाइट ऑफ़र है, पोलाइट ऑफ़र या रिक्वेस्ट आप किसी से करते हैं, तो जैसे ही आप किसी से पोलाइट ऑफ़र या रिक्वेस्ट करते हैं, वहाँ पे एक वर्ड है वुड यू लाइक, वुड यू लाइक टू, प्लस आगे वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आप लगा दीजिएगा। जैसे ही आप बोलते हैं कि क्या आप मेरे साथ कुछ समय बिताना चाहेंगे कृपया, वुड यू लाइक टू स्पेंड सम टाइम विथ मी प्लीज़, क्या आप एक कप चाय पीना चाहेंगे कृपया, वुड यू लाइक टू हैव अ कप ऑफ टी प्लीज़। बड़े ही प्यार से, आराम से, कोई डरने की ज़रूरत नहीं है। और ऐसा भी नहीं कि आपको बहुत ज़्यादा रटना है और रट रट के बोलना, ऐसा कुछ नहीं है। बहुत आराम से वुड यू लाइक, जहाँ पे वुड यू लाइक टू आ गया, आपको तुरंत वर्ब का फर्स्ट फॉर्म या करना है वेयर इन्फिनिटिव, लेकिन लाइक टू के बाद जैसे अगर बोलते हैं वुड यू लाइक टू हैव टी और कॉफ़ी, वुड यू लाइक टू हैव टी और कॉफ़ी, आप चाय लेना पसंद करेंगे या कॉफ़ी। अगर मान लीजिए कि आपको कुछ भी नहीं चाहिए, न तो चाय चाहिए न कॉफ़ी, तो आप क्या जवाब देंगे? कहेंगे नो थैंक्स। नो देने के बाद तुरंत आप बोलेंगे थैंक्स, नो थैंक्स, इफ़ यू डोंट वांट, इफ़ यू डोंट नीड टी और कॉफ़ी। अगर आपको चाय या कॉफ़ी कुछ भी नहीं चाहिए तो आप क्या कहेंगे? नो थैंक्स। नो थैंक्स बड़ा ही पोलाइट वर्ड है, इस तरह बोलेंगे, ये नहीं कि नो 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 आई डोंट वांट, इस तरह की चीज़ें ना बोलें आप लोग। तो हमेशा ध्यान रखेंगे जब बोलते समय थोड़ा सा अपने व्यवहार में, अपने एक्सप्रेशंस में, अपने टोन में भी
उसी तरह का व्यवहार लाएं जो हमारे लिए अच्छा हो, जो सुनने वाले को अच्छा लगे। तो बोले नो थैंक्स आंटी, नो थैंक्स अंकल। इस तरह थोड़ा सा और अच्छा बना सकते हैं अपने स्पीच को। अगर मान लीजिए आपको चाहिए 1 गिलास पानी, तो बोलेंगे, अगर मान लीजिए यही टी या कॉफ़ी में से कुछ चाहिए, यस प्लीज़ गिव मी ए कप ऑफ टी। यस, ये अगर प्लीज़ चाहें तो आप इसको बाद में भी लगा सकते हैं। यस गिव मी ए कप ऑफ टी, कामा दे करके आप लिख सकते हैं प्लीज़। अब बड़े आराम से बोलते रहे, कोई इसमें डरने की ज़रूरत नहीं है कि नहीं अरे बाप रे बहुत कठिन चीज़ है, कुछ नहीं है। यस गिव मी ए कप ऑफ टी प्लीज़, यस गिव मी ए कप ऑफ कॉफ़ी प्लीज़, गिव मी ए ग्लास ऑफ वाटर प्लीज़। अब इसको खूब प्रैक्टिस करिए। बोलते समय देखिए प्लीज़ को कोशिश करिए कि बाद में यूज़ करिए। लिखते समय आप आगे पीछे लिख लें, इससे कोई बहुत ज़्यादा परेशान होने का विषय नहीं है। इट इज़ नॉट द सब्जेक्ट टू बी ट्रबल्ड, यू मस्ट नॉट हैव एनी काइंड ऑफ टेंशन, जस्ट वेर एवर यू वॉन्ट टू स्पीक कंफर्टेबली यू कैन स्पीक। ओके, तो आप डरने की एकदम ज़रूरत नहीं है। डोंट फियर, डोंट बी पैनिक। अब प्लीज़ का यूज़ करके हम लोग बहुत बार बोलते हैं, प्लीज़ क्लोज द डोर, प्लीज़ सिट डाउन, प्लीज़ कम हियर प्लीज़। अगर आप बोलें कि कृपया आप मेरी मदद कर दें, हेल्प मी प्लीज़, तो प्लीज़ के यूज़ पे आप काफ़ी प्रैक्टिस आप लोग करिए। ये जो प्लीज़ है इस पर आप लोग कम से कम 10 सेंटेंस एक सांस में बनाइए, स्पीड में बनाइए। और ये वुड यू लाइक वाला जो सेंटेंस है, इस पे आप जितना अधिक से अधिक सेंटेंस बना सकते हैं सेंटेंस बनाइए, और जितना बोल सकते हैं, वुड यू लाइक टू हेल्प मी प्लीज़, वुड यू लाइक टू कम टू मी प्लीज़, वुड यू लाइक टू डू दिस वर्क प्लीज़, वुड यू लाइक टू हैव योर ब्रेकफास्ट प्लीज़, वुड यू लाइक टू गो देयर प्लीज़। इस तरह से आप बहुत सारी चीज़ सेंटेंस आप बनाते रहिए। जितना अधिक से अधिक सेंटेंस बनाएंगे वो आपको आसानी हो जाएगी। उसके बाद हमने बताया आपको प्लीज़ का यूज़ करना है। ये प्लीज़ थोड़ा सा हमारे टोन को डाउन कर देता है और बड़े ही पोलाइटली बोलते हैं हम किसी से बात करते हैं। अगर मान लीजिए किसी से प्लीज़ बोलते हैं और उसको बड़े ही रूडली बोलते हैं, प्लीज़ गिव मी, नो इट इज़ नॉट द टोन टू स्पीक। यस प्लीज़, सिट डाउन प्लीज़। तो आप इसको बोलते समय भी अपने बॉडी मीन्स अपने लैंग्वेज में भी इन योर स्पीच ऑल्सो यू शुड टेक केयर हाउ यू आर स्पीकिंग, हाउ यू आर टॉकिंग टू समबडी whom you are talking to। इवन ए चाइल्ड शुड बी टॉक्ड वेरी पोलाइटली। बच्चे से भी बड़े प्यार से बात करना चाहिए हमको। ऐसा नहीं कि बड़े रूडली बात कर दें तो लोग हमें पसंद नहीं करेंगे। ओके, तो आप अपने इंग्लिश बोलें, हिंदी बोलें, वट एवर लैंग्वेज यू स्पीक, बी पोलाइट, एकदम शालीनता, modesty, there should be austerity in your body language, in your gesticulation. Whenever you speak, your gesticulation and articulation is, these two things are very important. While speaking, we should not be arrogant. Whenever you are talking to somebody, don't be arrogant. Don't be rude to someone. Whenever you are talking to somebody, be very polite to them. अंग्रेजी बोलने का मैं अंग्रेजी सिखा रहा हूँ, इसका ये मतलब नहीं कि आप लोग कुछ भी बोलते चले जाओगे, नहीं, ये दिस इज़ नॉट फेयर। बड़े ही प्यार से इजी तरीके से बोलें आप लोग, ठीक है। तो आप ये प्लीज़ का यूज़ ये आप लोग के लिए होमवर्क है। इस पे आप लोग कम से कम 10 सेंटेंस फटाफट बनाएंगे और जितना हो सके अधिक से अधिक लिखिए सेंटेंस को, ठीक है। इसको आप लोग नोट कर लेंगे। अगर मान लीजिए कोई आप बोलते समय टू आर इज़ ह्यूमन, हम लोग जानते हैं टू आर इज़ ह्यूमन, गलती इंसान से ही होती है। कहते हैं इंसान जो है गलतियों का पुतला होता है, हम लोग से गलती नहीं होगी तो हम लोग भगवान हो जाएंगे। तो टू आर इज़ ह्यूमन, तो नो प्रॉब्लम, सो वी कैन कमिट मिस्टेक्स, बट देयर इज़ ए वर्ड फॉर दैट, सॉरी। सिंपली यू कैन से सॉरी। जब भी आपसे कोई गलती हो तो आप बोलते हैं सिंपल तरीके से सॉरी, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी। अगर आप चाहें तो इससे थोड़ा सा और पोलाइट हो बोलें तो आई एम एक्सट्रीमली सॉरी, आई बेग योर पार्डन। अगर कहें तो आई बेग योर पार्डन। ये सब नोट करते चलेंगे आप लोग, आई बेग योर पार्डन। इस तरह से ये भी देखिए थोड़ा सा ज़्यादा पोलाइट है। अगर मान लीजिए किसी का पैर और आपसे दब जाए, किसी को धक्का लग जाए, तुरंत बोलेंगे आई एम एक्सट्रीमली सॉरी, आई बेग योर पार्डन, आई एम सॉरी। तुरंत ये बोलना चूके ना। अगर आपसे कोई कुछ पूछता है,
कोई चीज़ के बारे में अगर आपको जानकारी नहीं है तो तुरंत बोलेंगे सॉरी सर, सॉरी आई डोंट नो, यानी कि नो आई डोंट नो, तुरंत नहीं बोलना है, सॉरी आई डोंट नो। तो आप थोड़ा सा अपने आचार व्यवहार में भी, इन योर बिहेवियर ऑल्सो यू शुड हैव मॉडेस्टी। तो आप जैसे अभी हमने कहा वुड यू लाइक कहाँ बोलना है, प्लीज़ कहाँ बोलना है, सॉरी कहाँ बोलना है, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी कहाँ बोलना है। दीज थिंग्स यू मस्ट प्रैक्टिस इन योर डेली लाइफ। आशा है आप सब लोग प्रैक्टिस ज़रूर करेंगे, और अगर कोई दिक्कत होती है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख दें, और ये ज़रूर बताएं कि आप लोग की इंग्लिश सच में सुधर रही है कि नहीं। अगर नहीं सुधर रही है तो कोशिश करिए, कोशिश करते रहिए, मेहनत करते रहिए। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, कुछ सेंटेंसेस हैं जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि कैसे आप लोग, करीब 5-6 सेंटेंस ऐसे हैं जो डेली यूज़ में हम लोग बोलते हैं लेकिन बोल नहीं पाते हैं। जैसे अगर हम किसी को धमकी दे रहे हैं, किसी के बोल रहे हैं तुम्हारे बाप का क्या जा रहा है, अक्सर सुनते हैं किसी से गुस्से में बोले तुम्हारे बाप का क्या जा रहा है। अगर हम कहें कि तुम्हारे बाप का क्या जा रहा है, अगर तुरंत बोलना तुम्हारे बाप का क्या जा रहा है, तुम्हारा क्या जा रहा है, बहुत सारे इस तरह के शब्द होते हैं। तो बोलेंगे व्हाट डू यू लूज़, व्हाट डू यू लूज़, व्हाट डू यू लूज़, तुम क्यों चिल्ला रहे हो, वाई आर यू शाउटिंग, वाई आर यू क्राइंग, व्हाट डू यू लूज़, तुम्हारा क्या जा रहा है। जैसे अगर आप ये बोलें कि आप इसे करेंगे या नहीं, आप इसे करेंगे या नहीं, अगर इसको सवाल के रूप में पूछ रहे हैं कि आप इसे करेंगे कि नहीं, वेदर यू विल डू इट और नॉट, वेदर यू विल डू इट और नॉट, इस पे आप लोग खूब प्रैक्टिस करें। जैसे बोलें आप वहाँ जाएंगे कि नहीं, वेदर यू विल गो देयर और नॉट, आप मुझसे बात करेंगे कि नहीं, वेदर यू विल टॉक टू मी और नॉट, आप चाय पिएंगे कि नहीं, वेदर यू विल हैव टी और नॉट, आप पटना जाएंगे कि नहीं, वेदर यू विल गो टू पटना और नॉट। इस तरह से बहुत सारे सेंटेंस आप बना सकते हैं। आप अपना सवाल हल करेंगे कि नहीं, वेदर यू विल सॉल्व योर क्वेश्चन और नॉट। तो ऐसे सेंटेंसेस अब इस पर आप बेटा प्रैक्टिस करो। आप लोग जब तक प्रैक्टिस नहीं करोगे नहीं आएगा। बार बार मैं अपनी बात को बोलता हूँ, प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट, क्योंकि मैं भी अगर सीखा हूँ तो मैंने भी प्रैक्टिस की हुई है, और आज भी इवन टुडे आई प्रैक्टिस। वेन एवर आई लर्न एनी न्यू वर्ड, वेन एवर आई गेट एनी न्यू थिंग्स, आई ऑलवेज ट्राई टू लर्न इट, आई ऑलवेज ट्राई टू अडॉप्ट फ्रॉम समबडी एल्स। ऐसा नहीं है कि मुझे आज सब कुछ रेडीमेड रखा हुआ और मैं सीख गया। आई वर्कड हार्ड अ लॉट। अगर आप लोग बताएं कि मैं जब शुरुआत में, आज के 30-32 साल पहले, जब मैं इंटर में था लगभग, उस समय पढ़ रहा था, तो मुझे इंग्लिश इतना डर लगता था कि वो लोग अंग्रेज़ी बोलते हैं और मुझे नहीं आती है। मैं तो अंग्रेज़ी नहीं बोल पाऊँगा, लेकिन आज इवन टुडे आई एम एबल टू स्पीक इंग्लिश, आई कैन टॉक टू एनीवन इन इंग्लिश। इफ़ आई गो टू फॉरेन कंट्री ऑल्सो आई हैव नो प्रॉब्लम, आई कैन टॉक टू एनीवन, आई कैन जस्ट बी एडजस्टेड एनीवेयर, आई कैन बी विद एनीवन। तो आप लोग भी हो सकते हैं, ऐसा नहीं है। इट इज़ नॉट इम्पॉसिबल थिंग्स, नथिंग इज इम्पॉसिबल, ओनली यू हैव टू थिंक इट इज़ पॉसिबल, यू कैन मेक इट पॉसिबल। ओके, तो आप लोग ये ना सोचें कि नहीं आएगा, लेकिन इस जब भी हमने बताया आप वहाँ जाएंगे कि नहीं, वेदर ही विल गो देयर आर नॉट, वह आएंगे कि नहीं, वेदर ही विल कम आर नॉट, आप ऐसा करेंगे कि नहीं, वेदर यू विल डू इट आर नॉट, आप लोग अंग्रेजी बोलेंगे कि नहीं ये बता दीजिए, ठीक नहीं है, वेदर यू विल स्पीक इंग्लिश आर नॉट, आप लोग प्रैक्टिस करेंगे कि नहीं, वेदर यू विल प्रैक्टिस आर नॉट, आप लोग मेरी बात सुनेंगे कि नहीं, वेदर यू विल लिसन टू मी आर नॉट, आप अभी खाना खाएंगे कि नहीं, वेदर यू विल टेक फूड और नॉट। इसको बार बार इस तरह से प्रैक्टिस करते रहें और सुनते रहें। अगर वीडियो एक बार में नहीं समझ में आती है तो बार बार इसको सुनिए, और सुन करके ही प्रैक्टिस कहते हैं। जब तक सुनेंगे नहीं तब तक धुनेंगे नहीं, जब तक धुनेंगे नहीं तब तक गुनेंगे नहीं। लिसन, थिंक एंड स्पीक, दिस इज़ द मंत्र ऑफ स्पीकिंग। पहले तो सुनिए, उसके बाद धुनिए। धुनिए मीन्स थिंक ओवर दैट, think about that topic, ponder over that, what is the things what we have to speak, then speak। जब तक बोलेंगे नहीं आएगा नहीं, आप चाहे कितना लाख कोशिश कर लो, चाहे भगवान भी पढ़ाएगा तो नहीं आएगा। जब तक आप लोग खुद से नहीं आगे आओगे, जब तक आप लोग खुद से नहीं बोलोगे, अगर आप ये नहीं चाहते हो कि हम अंग्रेज़ी बोल पाएँ तो आप नहीं बोल पाओगे, कोई नहीं सिखा सकता आपको।
आपको बोलना ही पड़ेगा, बार बार मैं कहता हूँ आपको करना ही पड़ेगा। यू विल हैव टू डू इट, यू विल हैव टू स्पीक इंग्लिश। इफ़ यू डोंट वांट टू स्पीक इंग्लिश, नो वन कैन टीच यू, नो बुक कैन टीच यू, नो टीचर कैन टीच यू। तो बेटा अगर आपको बोलना है कि इंग्लिश नहीं हमको सीखना है, मेरे अंदर जिद है, जहाँ जिद है वही जगह सफलता है। वेयर देयर इज मीन्स इंसिस्टेंस, देयर इज सक्सेस। यू हैव टू इंसिस्ट ऑन दैट, यू हैव टू फोर्स, यस आई हैव टू लर्न। तो इसको याद रखिए, इस स्ट्रक्चर को जरूर तैयार करिएगा। अभी आज हमने जितना भी बताया वीडियो में उसको आप लोग ज़रूर तैयार करें, जिससे कि आप लोग कुछ सीख जाएं, ठीक है। अगर जब प्रैक्टिस करेंगे तो निश्चित रूप से सफल होंगे। कहते हैं ना कि रोम वॉज नॉट बिल्ट इन अ डे, चैरिटी बिगिंस एट होम। रोम वॉज नॉट बिल्ट इन अ डे मीन्स होता है कि ना कोई भी काम तुरंत नहीं होता है। हिंदी में कहावत है, कारज धीरे होत हैं काहे होत अधीर। तो यू कैन से दैट रोम वॉज नॉट बिल्ट इन अ डे। रोम जैसा शहर एक दिन में नहीं बना था। अगर आपको सफल होना है लाइफ में तो डोंट यूज शॉर्टकट। इफ़ यू यूज शॉर्टकट योर लाइफ विल कट शॉर्ट। याद रखिएगा, अगर आप चाहते हैं कि अगर आपकी सफलता शॉर्टकट से मिले तो आपकी ज़िंदगी भी शॉर्ट ही है निश्चित रूप से। कहते हैं अगर आप मेहनत से मीन्स प्रयास करके अगर आपने सीखा हुआ है, ऐसी सफलता अर्जित की है जो आपकी एवर लास्टिंग है, तो सच में आप जो है महान हैं और आप जैसा कोई नहीं है। लेकिन आपको मेहनत तो करनी पड़ेगी बेटा, बिना मेहनत के कुछ नहीं हो सकता। जैसे अगर आप ये बोलते हैं कि मैं बोले बिना नहीं रह सकता, मैं बोले बिना नहीं रह सकता, तब आप क्या करेंगे? इसको कैसे बोलेंगे? इसको आप लोग याद करेंगे, आई कांट हेल्प। आई कांट हेल्प जैसे याद रखिए बेटा इसको, जब कांट हेल्प आएगा तो आपको आईएनजी लगा देना। आई कांट हेल्प स्पीकिंग, आई कांट हेल्प स्पीकिंग। मैं उसको डांटे बिना नहीं रह सकता, आई कांट हेल्प स्कोल्डिंग ही। मैं खाए बिना नहीं रह सकता, आई कांट हेल्प ईटिंग। मैं पढ़े बिना नहीं रह सकता, आई कांट हेल्प स्टडीइंग। मैं वहाँ जाए बिना नहीं रह सकता, आई कांट हेल्प गोइंग देयर। मैं सच बोले बिना नहीं रह सकता, आई कांट हेल्प स्पीकिंग द ट्रुथ। मैं अंग्रेजी बोले बिना नहीं रह सकता, ये आप लोग को वादा करना होगा कि आई कांट हेल्प स्पीकिंग इंग्लिश, आई कांट हेल्प स्पीकिंग इंग्लिश। तो याद रखिए, जैसे ही आप लोग ये यूज़ करते हैं कांट हेल्प, उसके तुरंत बाद आपको जेरंड यूज़ करना है। जेरंड का मतलब है कि ये वर्ब है, सिंपल भाषा में जान लीजिए, आपको आईएनजी फॉर्म लगाना है, ये लगाना है। ये सब्जेक्ट आप अपने से बदल सकते हो बड़े ही आराम से, बड़े प्यार से। देखिए अगर 10-20 सेंटेंस बना के तो देखिए, ना आ जाए तो कहिएगा आप लोग कि सच में नहीं आया हमको। आप एक बार शुरू करिएगा। निश्चित रूप से इंग्लिश बोलना दैट इज़ नॉट वेरी इजी। बहुत से लोग कहते हैं इट इज़ नॉट योर कप ऑफ टी, ये आपकी बस की बात नहीं, इट इज़ बियॉन्ड यू, इट इज़ नॉट पॉसिबल। नो, इट इज़ नॉट ट्रू। व्हाट आई हैव फेल्ट इन माई लाइफ, I have started from zero. I have started from zero, and today I can talk to anyone. As I told you, I have no problem in English. My vocabs, we can understand. I can understand anything easily. You can also do this thing. लेकिन वही ध्यान रखिएगा, रोम वॉज नॉट बिल्ट इन ए डे। एक दिन में कुछ नहीं होता है, लेकिन एक दिन तो निश्चित रूप से कुछ न कुछ होता है। कहते हैं ना कि नथिंग इज पॉसिबल इन वन डे, बट वन डे something is possible. If you want to make something possible, wait for the day when it comes true. It will surely come true. तो आशा है आप सभी लोग इस पे ज़रूर कम से कम 10 सेंटेंस तो बना ही लेंगे। अगर नहीं बन रहा है तो बेटा आप लोग ज़रूर मुझे बताना, ये सर नहीं आ रहा है, मैं इसको फिर से आप लोग को मेहनत करूँगा और बताऊँगा, निश्चित रूप से आ जाएगा। जैसे बोल रहा हूँ कि आई कांट हेल्प स्टेइंग हियर फॉर सम टाइम बिकॉज आई हैव अनदर क्लास नाउ। तो माय डियर स्टूडेंट्स, अगर आप लोग को ये वीडियो जो आज बनाए हैं अगर अच्छी लगती है, अगर इससे कुछ सीखने को मिलता है तो लाइक ज़रूर करिएगा। कंजूसी तो नहीं करना आप लोग को। देख रहे हैं बहुत से लोग वॉच तो कर रहे हैं, सब्सक्राइब नहीं किए हुए, पता नहीं क्या है। कोई डर लगता है कि नोटिफिकेशन बार बार आएगा। अरे भाई, अगर आपको वॉच करना हो तो वॉच करिएगा, लेकिन अगर इंटरेस्ट है कि सीखना है हमको, जहाँ सीखना है, जहाँ इंटरेस्ट है, तो फिर सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे आपका ये जो चैनल आपके पास पहुंचता रहे, आपको जो इससे कुछ सीखने को मिलता रहे। सीखने में कुछ नहीं जाता है, कहते हैं ना कि लर्निंग इज़ ए लाइफ लॉन्ग प्रोसेस।
मरते दम तक आदमी सीखता है, जिस दिन अंत होता है उस दिन भी सीखता है कुछ न कुछ। तो सीखते रहिए, एंजॉय करते रहिए। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा और इसको शेयर अपने दोस्तों में, अपने फ्रेंड्स में, रिलेटिव्स में ज़रूर करिएगा। ये आप लोग से रिक्वेस्ट है, आप लोग से मैं भी यही चाहता हूँ कि जब मैं मेहनत आप लोग के लिए कर रहा हूँ तो आप लोग भी थोड़ा सा मेरे लिए मेहनत ज़रूर करिएगा। देखते हैं कितने मेरे चाहने वाले हैं, कितने लोग सब्सक्राइब करते हैं, कितने लोग इसको लाइक करते हैं, कितने लोग शेयर करते हैं। जय हिंद, जय भारत।